Hello everyone, this is Shifa. Welcome to my YouTube channel. In today's video, we will be talking about A Passage to India by E.M. Forster. It is written by E.M. Forster in the year 1924. It is a historical fiction and the narrator is using a third person omniscient narration. The title refers to American poet Walt Whitman's poem A Passage to India. This allusion provides a contrast between Whitman's romantic view of colonization and how the Forster is giving us the darker view of racism and suppression after the colonization happened, after or in fact during the colonization. Now, we will also discuss some important points used in this particular novel. First of all, the language. The language used in the passage to India gives us the idea of how suppression and overpowering is happening, like for example nigger or native. अगर आप सोच रहे होगे कि फॉस्टर E.M. फॉस्टर को इंडिया की मालूमात किस तरह मिली, तो देर इज़ दिस पर्सन सैयद रॉस मसूद. फॉस्टर जो है वो इनको ट्यूटरिंग करते थे और इनके ज़रिए इनको बहुत सारी इंसाइट्स मिली. ठीक है, ये फॉस्टर के स्टूडेंट रहे हैं और जब मसूद रिटर्न हुए इंडिया को in 1912, Forster also visited India. Again, he visited India in the second trip in the year 1921 और वहाँ पे उन्होंने एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑल्सो वहाँ पे काम किया है फॉर हिज अनदर फ्रेंड महाराजा ऑफ देवास. तो इस तरीके से उनको बहुत सारी इंसाइट मिली. द फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल टू इंडिया वॉज इन 1912 एंड द सेकेंड टाइम इन 1990. Another important fact of this novel is it has won 1924 James State Black Memorial Prize and it is considered as one of the classic novels. Now we will look at the characters. The first and the protagonist of this particular novel, the very important character Aziz. Aziz is a widower and has 3 children. He works under Britisher at hospital in Chandrapur. He is doctor, okay, and he is bitter towards Britishers but is also open to open-minded Britishers. For example, in the coming time we will be seeing Mrs. Moore and Mr. Fielding. They are Britishers but they are really nice to Indians and therefore Aziz liked them. The second characters around which the story revolves, or you can say that she becomes the catalyst of the plot, Adela. Adela is a young upper middle class English woman और उसकी सगाई हो गई है रॉनी के साथ. रॉनी इज़ अ कमांडर ऑफ अ ब्रिटिशर. ठीक है, रॉनी हैज़ अ मदर एंड हर नेम इज़ मिसेस मोर. सो अभी मैं जिसकी बात कर रही थी, शी इज़ रॉनीज़ मदर हु इज़ वेरी काइंड एंड ओपन हार्टेड. और उसका जो सन है Ronnie is from her first marriage. ठीक है, and from the second marriage they have the couple have 2 children, Stella and Rolf. Then we comes to Mr. Cyril Fielding. Cyril Fielding is a principal of one school. He is an Englishman and he came to India in his 40s. He is friend with Hamidullah and Aziz. Professor Godbole works under Mr. Fielding. ठीक है, they are in the same school. और प्रोफेसर गोडबोले के बारे में भी हम नॉवल में ऐसे जब प्लॉट डेवलप होगा I'll tell you. ठीक है, now the novel is divided into 3 major part. First is mosque, second is caves and the third is temple. So समरी में हम देखेंगे कि चंद्रपुर का लोकेशन दिया हुआ है. चंद्रपुर एक प्लेस का नाम है. इन द ईयर 1920s देर आर 3 पीपल, डॉक्टर अजीज़, हमीदुल्ला एंड महमूद अली. इन लोग डिस्कस कर रहे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक इंग्लिश और एक इंडियन फ्रेंड्स हो सकते हैं. उसी टाइम पे जब ये डिस्कशन चल रहा होता है, अजीज़ को उसके सुपीरियर बुलाने आते हैं. उस सुपीरियर का नाम क्या है? मेजर कैलेंडर. वो उसको जो सिक्योरिटी बुलाने आई है वो उस सिक्योरिटी को बोलता है येस आई एम कमिंग, और
वो सिक्योरिटी वहाँ से चले जाते हैं। अज़ीज़ मेजर कैलेंडर के पास पहुँचने से लेट हो जाता है एंड जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो देखता है कि उसका सुपीरियर ऑलरेडी अपना घर छोड़ के कहीं काम के लिए निकल गया है और बाकी के लोग उसको भगा देते हैं। देन ही वॉक्स टू मॉस्क, वो थोड़े बुरे मूड में होता है। वहाँ पे उसको मिसेस मोर मिलते हैं और मिसेस मोर से वो थोड़ा रूडली पेश आ जाता है क्योंकि वो शूज़ पहन के अंदर जा रही थी। बट व्हेन ही कन्फ्रंट्स हर, शी पोलाइटली सेज ओके आई एम सो सॉरी, शी अपोलोजाइज। ये देख के अज़ीज़ बहुत खुश हो जाता है कि एटलीस्ट देर इज़ सम पीपल हु आर रिस्पेक्टेबल टू इंडियन, स्पेशली इंग्लिश पीपल। मिसेस मोर जो है वो वहाँ से चले जाती है, वो एक इंग्लिश क्लब जाती है और कहाँ जाती है, अडेला क्वेस्टेड। अडेला क्वेस्टेड कौन है, उसकी होने वाली बहू है, उसको जाके वो ज्वाइन करती है एंड अडेला को वो पूछती है, उसको बोलती है कि अब उसको डिसाइड करना है वेदर शी वांट्स टू मैरी रॉनी और नॉट। मिस्टर टर्टन एक गवर्नर है जो पूरे चंद्रपुर को गवर्न कर रहा है और वो बोलता है कि क्यों ना एक ब्रिज पार्टी हम ऑर्गेनाइज करें। ब्रिज पार्टी मींस पार्टी बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, जहाँ पे हम एक दूसरे को लोगों को मिलवाएंगे। अडेला एंड मिसेस मोर मीट्स ग्रुप ऑफ वुमेन। नाउ जब वो ब्रिज पार्टी चालू होती है तो उसका सिनेरियो इस तरीके से होता है कि इंडियंस को पहले ही ऑलरेडी अलग किया जाता है और सारे जो ब्रिटिशर्स है वो अलग खड़े रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल मिसेस मोर, जो सामने से जाके और एडेला को भी लेके वो सारी औरतों से, इंडियन औरतों से वो बातचीत करते और इंडियन औरतें उन्हें चाय पे बुलाते। सिमिलरली द अनदर कैरेक्टर प्रिंसिपल मिस्टर फील्डिंग भी बहुत ही अच्छे से सारे इंडियन से मिलते हैं। अज़ीज़ जो है ऑन दी अदर हैंड, ही डजन अटेंड पार्टी, और वो क्या कर रहा है, वो अपने वाइफ का फ़ोटो देख के, ही इज़ समवेयर एल्स, और वो अपनी वाइफ का फ़ोटो देख के सैड हो रहा है। ठीक है, ये देख कर के अज़ीज़ नहीं आया है, फील्डिंग जो है वो अज़ीज़ को इनवाइट करता है चाय पे। ठीक है, और वहाँ पे और कौन इनवाइटेड रहता है, मिसेस मोर एंड मिस अडेला। ठीक है, लेडीज़ और फील्डिंग दोनों ही, लेडीज़ और अज़ीज़ दोनों ही फील्डिंग के घर पे आते हैं। अब क्या करता है, फील्डिंग जो है वो मिसेस मोर को कॉलेज विज़िट कराने लेके चले जाता है। अडेला, अज़ीज़ और मिस्टर गोडबोले ये फील्डिंग के घर पे रहते हैं। अब अज़ीज़ जो है वो अडेला को बोल रहा है कि आपको यहाँ घूमने जाना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो आस्किंग अबाउट अडेलाज मैरिज, और वो पूछ रहा है कि क्या आप उस मिस्टर रॉनी से शादी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट अज़ीज़ से दैट आपको यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा टाइम थोड़ा रुकना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। एंड देन अज़ीज़ इन्वाइट्स देम हु मिसेस मोर एंड अडेला टू मलाबार केव्स। उन लोग की बात चल रही होती है, इतने में रॉनी आ जाता है, वो अडेला को लेके चले जाता है। अडेला जब रॉनी के साथ कार में जा रही होती है, वो अनाउंस करती है कि शी कांट मैरी हिम, और उसको वो फीलिंग्स है नहीं और इसीलिए वो शादी नहीं कर सकते। उतने में कुछ अजीब सा होता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद उनको हालांकि उनको ज़्यादा कुछ नहीं लगता है और उनके जो भी गार्ड्स वगैरह है वो फ़ौरन कार की तरफ आके ले लेते हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं, अडेला को और रॉनी को। ठीक है, और फिर बाद में पता चलता है कि अडेला ने अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया है एंड शी हैज़ अग्रीड टू मैरी रॉनी। सेकेंड पार्ट की तरफ हम चलेंगे, केव्स की तरफ। अभी लेडीज़ रेडी हो रही है मलाबार केव जाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे फील्डिंग और गोडबोले दोनों आने वाले थे, लेकिन फील्डिंग और गोडबोले ने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया है। अब क्या होता है, अडेला जो है वो अज़ीज़ के साथ, अज़ीज़ उसको लेके चले जाता है। अज़ीज़ इज़ टेकिंग अडेला ऑन एन एलिफेंट, और इस तरीके से बताया गया कि अडेला जो है वो बोर हो रही है अज़ीज़ के जोक्स से। अब अडेला जो है वो अज़ीज़ को पूछती है कि क्या तुम्हारी एक से ज़्यादा बीवी है, तो वो ऑफेंड हो जाता है और वो कहीं दूर चले जाता है उससे।
जब वो रिटर्न आके देखता है तो वो देखता है कि एडेला वहाँ पे नहीं है एंड शायद वो कहाँ चली गई है। फिर पता चलता है कि एडेला अचानक से वापस चंद्रपुर रिटर्न हो गई है। इतने में फील्डिंग और बाकी सारे लोग ट्रेन से उस जगह पर आते हैं और डिसाइड करते हैं क्योंकि एडेला चले गई है तो वो भी चंद्रपुर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन रास्ते में ही अज़ीज़ को रोक लिया जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है ये बोल के कि उसने एडेला के साथ बुरा बर्ताव किया है। फील्डिंग और रॉनी की जो मदर है मिसेस मोरी, वो इस बात से सहमत नहीं करते कि अज़ीज़ ऐसा कुछ कर सकता है। रॉनी को इस बात पे गुस्सा आता है और वो मिसेस मोर को वापस इंग्लैंड भेजने की तैयारी करता है। अभी कोर्ट में अज़ीज़ का ट्रायल लिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है एंड अज़ीज़ को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बट कुछ टाइम बाद जो एडेला है वो खुद से ही मुकर जाती है कि अज़ीज़ ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसको शायद कुछ गलतफहमी हो गई थी। इंडियंस ये बात से खुश होते हैं, लेकिन अज़ीज़ ऑन दी अदर हैंड वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि उसको ये सब सहन करना पड़ा। 2 साल बीत जाते हैं और फील्डिंग जो कि इंग्लैंड रिटर्न हो गया था वो 2 साल बाद वापस इंडिया आया है। उसने मिसेस मोर की बेटी से शादी की है एंड अज़ीज़ और फील्डिंग दोबारा मिलते हैं एंड फील्डिंग बोलता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं क्योंकि वो बीच में से चले गया था। अज़ीज़ उस टाइम पे बोलता है नॉट नाउ नॉट अंडर दिस स्काई, मीन्स कि जब तक इंडिया इंग्लैंड से आज़ाद नहीं होता आई डोंट थिंक ब्रिटिशर और एक इंडियन कभी भी एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं अब हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।